Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for the Scorpion Ascendant people. We will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mars is going to be in the 7th house in the Taurus sign for the whole of December. This place that it is going to aspect the first house. Ascendant Lord aspecting the Ascendant is always good because Mars will provide you with great energy for work in this month. This month will also see you getting aggressive with your partner in personal as well as in professional life. And it is advised that you keep that aggression in check. Otherwise, it may backfire on you. So, whether it is your spouse or it is your business partner, just play cool with them and do not lose your patience while dealing with them. Sun is the 10th house lord and it is going to be in the first house till 16th of December. So this sun is going to boost your ego till the middle of the month. So you again may get into conflicts with people around you. So try to play cool, and after this sun will move to the second house, which indicates money inflow coming from the profession, because the 10th house lord going in second would mean money will come from your profession. For you, there is going to be a stellium that is going to get created in the second house in the second half of December. So from 17th of December till the end of the month, this stellium in the second house will provide a great opportunity to earn money, and the gains are going to be both personal gains as well as the monetary gains. December is going to prove to be a very lucrative month provided you are able to address the pain that comes with it. So I've seen many charts where there are three or more planets in the second house, and while a lot of such people have money, they also have a lot of pain, especially when the eighth house is empty, which is also happening during this transit. So all these three planets will aspect the eighth house, and eighth house is empty. It means that negative energies of this eighth house are also going to get pulled in the second house. So in order to avoid this pain, it is better to learn something in astrology, pay your personal tax, do some research, but this can only happen if you are in that particular line of work. People who are in technical jobs will already be utilizing this placement to a great extent, so they need not do anything extra. But for rest of the people, you can do any of these activities that I have stated, so that you get relief from this pain that these three planets are going to bring in through their aspect on the eighth house. Jupiter continues to pass through its own sign in the fifth house, and it is also the lord of self earned wealth. So, the second house lord passing through fifth means you will be able to earn through your family, speech, using your creativity and intellect, education, and through speculation. Jupiter is going to continue to pass through the star of Saturn, and Saturn is placed in a sextile from Jupiter. So, all those who are in pursuit of activities that are related to the fifth house, that is, artists, advertisers, painters, speculators, they will see a very positive month. Saturn is the third as well as the fourth house lord, and it continues to pass through the star of Mars. So, people who have business will need to work very hard in this month. And if you're planning to start a new business, then I would suggest you to not begin in the month of December, because for starting the business, you would need the support of Jupiter, and right now it is not casting its aspect on the seventh house. Mercury is the lord of 8th and 11th house, and it is going to pass through the second house. The good part about this placement is that Mercury is also going to aspect its own sign. So, as I have mentioned earlier, people engaged in research and analysis, data analytics, taxation, and technical work will experience great professional time in the month of December. Rahu and Ketu continues to be in very good position for you. Rahu is considered a very strong planet in the sixth house, as it will continue to dismantle your enemies, and Ketu in the 12th house will continue to take people on the higher realms of spirituality. There are also certain dates where you need to be very cautious in the month of December. I always provide these dates because they are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house, and you should avoid taking any key decisions during this time frame. So for your ascendant, the dates in December are 4th and 5th of December, 9th and 10th of December, and 19th and 20th of December. Just be very careful for during these 6 days.
If you look overall, this is a time to make loads and loads of money by utilizing the negative energies of the eighth house in a positive manner. Three planets in the second house guarantees that money is going to come from all possible directions, but it depends on you how you utilize the negative energies and bring only the positive aspects in your life in this month. So that's the summary for you for December. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं वृश्चिक लग्न के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश मंगल सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर ये पूरे महीने में बने रहेंगे। लग्न स्वामी का अपने ही स्थान को देखना ये हमेशा अच्छा कहलाता है, क्योंकि वो अपने भाव को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि मंगल की दृष्टि लग्न स्थान पे पड़ रही है, तो व्यक्ति को बहुत एनर्जी मिलेगी इस महीने में अपने कार्यस्थल पे, और अपनी लाइफ में भी वो काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेगा। यहाँ पे आपका जो इशू बनेगा वो ये है कि मंगल चूंकि सप्तम भाव में बैठा है, तो ये व्यक्ति के सप्तम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में अग्रेशन लेके आएगा। तो आप अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अग्रेसिव होंगे दिसंबर के महीने में, और आपको यही चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि झगड़े करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर किसी मृदु ग्रह का सपोर्ट मिल रहा होता है, यानी गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है या शुक्र की दृष्टि पड़ रही होती, तो हम बोल सकते थे कि ये फिर भी रिलीफ वाला स्थिति रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उल्टा सूर्य भी 16 दिसंबर तक प्रथम भाव में बैठा रहेगा। तो यहाँ पर मुसीबत का कारण आपका क्रोध बन सकता है। तो आपको इस महीने में शांति रखनी है। जब भी आप अपने पति पत्नी से बात करें या बिजनेस पार्टनर से बात करें, कूल लूज कर देंगे तो वो आपके लिए बैकफायर करेगा। इसलिए अग्रेशन को आप अपने संभाल के रखिए। जैसा मैंने पहले बोला, सूर्य आपके कर्मेश बनते हैं और वो 16 दिसंबर तक लग्न स्थान से गुजरेंगे। जब भी कभी सूर्य लग्न स्थान से निकलता है तो व्यक्ति में अहंकार जगाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बड़ी हस्ती हैं। जिनके भी लग्न स्थान में सूर्य होता है, ऐसे लोगों में हमेशा आप ईगो देखेंगे। इनकी पर्सनालिटी भी बड़ी जोरदार होती है जिनकी बर्थ चार्ट में सूर्य प्रथम भाव में होता है, लेकिन फिर वो अहंकार को भी जन्म देता है। तो यहाँ पे 16 दिसंबर तक आपको अपनी ईगो को संभाल के रखना है, नहीं तो फिर ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और 16 दिसंबर के बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो कर्मेश का द्वितीय भाव में जाना यानी कि आपको आपके प्रोफेशन से ही आमदनी बढ़ती हुई दिखेंगी दिसंबर के महीने में। यहाँ पे तीन ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है द्वितीय भाव में, सूर्य, शुक्र और बुध, गुरु की राशि में। जब भी कभी बहुत सारे ग्रह द्वितीय भाव में जमा हो जाते हैं तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा आता है। अगर लोगों की जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह द्वितीय भाव में हुए तो वो लोगों के पास पहले से ही बहुत पैसा होता है। या तो वो रिच फैमिली में पैदा हुए होते हैं या परिस्थितियां उन्हें काफ़ी पैसा लाकर देती हैं, लेकिन उनके साथ ही उनकी ज़िंदगी में तकलीफ भी बहुत होती है। तो आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हैं, तो आप पैसा भी ले लो लेकिन मेरी तकलीफें भी ले जाओ अपने साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन चूंकि तीनों ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव भी खाली है, तो ये अपनी एस्पेक्ट के थ्रू अष्टम भाव की नेगेटिव एनर्जीज को भी आपके अंदर समावेश कर लेंगे दिसंबर में। तो जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है, वहाँ पे फिर पेन भी आने लगता है। तो इसको आपको यूटिलाइज कैसे करना है कि आप अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को करें दिसंबर के महीने में। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्योतिष्य में तो आपका इंटरेस्ट है ही, तो ज्योतिष्य की कुछ पढ़ाई कर लीजिए, कुछ किताबें पढ़ लीजिए, दिसंबर के महीने में सीखने का प्रयत्न कीजिए ज्योतिष्य को। या फिर आप अपना इनकम टैक्स भर दीजिए, कोई भी छोटा मोटा अमाउंट भी भर दीजिए। एडवांस टैक्स अगर देते हैं तो 10-20 हज़ार जो भी आपका मन करे, तो वो भी एक तरीके से ये एनर्जीज यूटिलाइज करने का तरीका होता है। आप रिसर्च कर सकते हैं अष्टम भाव से जुड़े हुए अगेन, लेकिन उसमें सब लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तंत्र मंत्र साधना वगैरह में अगर आपका विश्वास है तो उससे भी जुड़ी हुई चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इस भाव का इस्तेमाल कर लें वैसे ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई तकनीक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक्नोलॉजिकल जॉब में है, तो आपका अष्टम भाव वैसे ही यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह के तकनीकी नौकरी में नहीं है, तो मैंने जो बताई चीज़ें उसमें से कुछ ज़रूर कीजिए, तो आपके नेगेटिव एनर्जीज आपके सेकंड भाव को इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। नहीं तो फिर वो व्यक्ति के उसमें पीड़ा लाने का भी कार्य इस तरह का प्लेसमेंट करता है। लेकिन ये
द्वितीय भाव तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि मंगल का भी आष्टा दृष्टि पड़ेगा द्वितीय भाव पे। तो पैसा कमाने के बहुत मौके मिलेंगे आपके लग्न को दिसंबर के महीने में। गुरु अपने ही भाव से गुजर रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं आपके लग्न के लिए, और गुरु द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम भाव से गुजरना, यानी कि आपको आपके परिवार के थ्रू धन आता हुआ दिखेगा, या आप अगर पब्लिक स्पीकर हैं या आप किसी टीचिंग लाइन में वगैरह हैं तो वहां पर भी आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके पैसा कमा पाएंगे। पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजें अगर आप करते हैं, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स, राइटर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स हो जाते हैं, या फिर आप सट्टेबाजी से भी संबंध रखते हैं, तो भी इस समय में पैसा आपको अच्छा कमाने का मौका मिलेगा दिसंबर में। गुरु यहाँ पे शनि के ही नक्षत्र से निकलेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से वो भ्रमण करेंगे, और शनि और गुरु भी एक दूसरे से त्रिरेकादश योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पंचम भाव से जुड़ी हुई जो मैंने एक्टिविटीज बताई हैं उससे आपको काफी पैसा मिलने की संभावना बनती है इस महीने में। शनि तृतीय और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय और चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर शनि धनिष्ठ नक्षत्र से गुजरेंगे। तो जितने भी लोगों का अपना स्वयं का बिजनेस है उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे इस महीने में, क्योंकि मंगल स्वयं भी सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि शनि है तो मेहनत तो बहुत करवानी पड़ेगी, एफर्ट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वैसे भी तृतीय भाव से गुजर रहा है, तो जो कि एफर्ट का ही भाव कहलाता है। अगर आप इस समय में कोई अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो थोड़ा होल्ड करके रखिए, क्योंकि गुरु का सपोर्ट लगता है बिजनेस चालू करने के लिए, जो आपको अभी मिल नहीं रहा है। इसलिए नया बिजनेस अगर चालू करना चाहते हैं तो उसको होल्ड पे रखिए। बुध अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, और वो भी द्वितीय भाव से भ्रमण करेंगे। जो अच्छी बात है वो ये कि द्वितीय भाव में बैठ के बुध अपने ही भाव को देखेंगे अष्टम भाव में, तो फिर से अष्टम भाव फिर से मजबूत होगा। इसीलिए अगर आप वो एक्टिविटीज करते हैं तो बुध से भी आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा कमाने के योग बहुत हैं। बुध 11वें भाव का भी स्वामी है, 11वां भाव लाभ स्थान है, तो लाभ स्थान का भी स्वामी द्वितीय भाव से जा रहा है। तो यहाँ से आपके सोशल नेटवर्क और मित्रों से वगैरह भी पैसा मिल सकता है, या बड़े भाई बहन से भी पैसा मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको यूटिलाइज कर पाते हैं इस महीने में, जो आपको प्लैनेट दिखा रहा है उन चीज़ों को। यहाँ पर फिर से अगर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस एनालिटिक्स की फील्ड में है, टैक्सेशन में है, कोई भी इंजीनियरिंग या कोई भी टेक्निकल कामों में आप संबंध रखते हैं, तो ये महीने में काफ़ी पैसा आने की संभावना बनती है। और देखिए सारे प्लैनेट सूर्य शुक्र बुध अपने अपने भाव से वो पैसा खींच के आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन वही है कि आपको उन भाव से जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। राहु और केतु की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु छठवें भाव में जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है उसको कोई भी बीमारी ज्यादा टाइम तक परेशान नहीं करती। राहु बीमारियों का संहार कर देता है, शत्रुओं को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे गोचर से भ्रमण कर रहा है, तो ये आपको अच्छी हेल्थ भी देके जाएगा इस समय में, और आपको दूसरों अगर दुश्मनी है किसी के साथ तो उनका भी सफाया करने में मदद करेगा। केतु 12वें भाव में जब भी बैठता है तो व्यक्ति को मोक्ष दिलाने का काम करता है। जिनके भी केतु 12वें भाव में जन्म कुंडली में होता है, ऐसा माना जाता है कि उनका आखिरी जन्म है और इसके बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब महीने में कुछ दिन ऐसे हैं जब आपको कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेना टालना चाहिए, क्योंकि उस समय में चंद्र 6 8 12 से गुजरता है और आपके सही मानसिक स्थिति नहीं रहती अच्छा निर्णय लेने की। तो दिसंबर के महीने में जो दिन है वो हैं 4 और 5 दिसंबर, 9 और 10 दिसंबर, और 19 और 20 दिसंबर। इन दिनों में सावधान रहिए और कोई क्रूशल आप निर्णय लेना टालिए। अगर आप ओवरऑल देखिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये दिसंबर के महीने में आपके लिए, और पैसा कमाने की प्रचुर आपको मौके मिलेंगे। खाली जो आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई उनको कीजिए, ताकि आपका जो पीड़ा का भाव है वो आपके वेल्थ वाले भाव में घुस के आपको परेशान नहीं कर सके। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।